औरंगजेब, मैंने आपको को होस्ट बनाया, आप भी प्लीज रिकॉर्डिंग कर लें। ओके सर। थैंक यू। और प्लीज आप में से जो जो अपनी वीडियो ऑन कर सकता है वो उससे रिक्वेस्ट के अपनी प्रेजेंस शो करने के लिए वीडियो ऑन कर दें। ठीक है, इट्स ए रिक्वेस्ट प्लीज। कितना टाइम है हमारे पास? मेरे ख्याल में, हाउ मच टाइम यू नीड? मैंने तो 45 मिनट्स की बनाई थी, लेकिन अब मैं कुछ स्किप कर दूंगा बीच में से। 45 मिनट्स इज फाइन मेरे ख्याल में, इफ इट इज नॉट टू लेट फॉर यू। चलो शुरू करते चलें, शुरू करते हैं। हैं। मीन पहले तो कि ये हम आज ये प्रेजेंटेशन क्यों कर रहे हैं। सरफराज हम्म, ने आपने मुझसे पूछा था कि मैं शेयर करूं आइडियाज स्टूडेंट के साथ कि वो फाइनल ईयर प्रोजेक्ट्स कर सकें। अ, तो ये मैंने प्रेजेंटेशन बनाई है जिसके अंदर देयर first I will talk about why you have to do this like final year project, how can it help your career. Then I will most probably skip it, but what are the timeless foundations of computer science and what are the career paths? I will definitely cover career paths. I think that's important. Then there are some challenges that I'm going to talk about, which is in general, like computer science and other fields. And then I'm going to talk about like 16 different projects, even though like I said 10. There's so many projects I can that I think are very important. And then at the end, we can have I'll share a little bit about how in the big tech we ship software, because that's very important and that's missing from university education. And at the end, we'll talk about how the market is right now, and then question and answers. So let me just jump ahead. And uh, so I assume you guys are in third year or fourth year now, right, Sarfaraz? यस, देयर इन फोर्थ ईयर। So so 3 years gone, one left. You have spent 3 years like learning courses, chasing grades, and now you're wondering like what's next, and whether this final year project even matters or not. So it does matter, but and your career doesn't start 1 year from now. It starts today. Uh, your final year project is going to be very important to help you understand um, how to build software in the industry, and I hope you guys will understand that in like a year. So far, what you have done is like courses. It's finish up assignments, finish up projects which are just like a few months, and that's not enough. uh, so there's a trap that most people waste this year out of fear, right? They don't know what to do, and they try to always safeguard and try not to fail. But I think the important thing is don't let your fear take the decision for you. So the question you should be asking, like, what does this final year project actually mean for my career starting from now? Am I building something that really solves a real world problems, something that's not just a demo? How do I transition from a student to a system owner? System owner, I mean, you own the system in a company, right? So if something goes wrong, it's you who's going to fix it. There's not going to be much help other than like some senior engineers helping you. The other thing is like, if so your idea, if you have to defend your idea in front of us of an investor, would you even survive that? And usually these meetings are just like 30 seconds, 3 minutes. So you really need to know what the problem you're solving and how you're solving it. So what happens to my confidence if the exact framework that I'm learning is obsolete in a few years? That's a very good question, and most of the things are in current day and age. It's very uh, probable that that will happen. So the mental shift from a student to professional is meant students write code, write algorithms, develop, do assignments. Professional writes code that
survive production. When I say production, it's a million users using it, a billion users are using it, right? And you get an error at 3 a.m. and you have to go up, get up and fix it. So there's a big mind shift here. Student chase relief of finishing. Professionals sit with the discomfort of edge cases. Uh, they know if they do such and such solution, it's going to cost 10 times more, and they have to do telemetry all the time, which means they have to log everything, which will give you an idea of what the project execution is at runtime. So this slide I can skip since I we wasted a little bit of time, but it's just showing evolution of computer science over the years and where are we right now. So I can skip this one too. So what defines your first step, and what defines, like, well, this is about your career paths. So I try to think a lot, like, once you're done with your bachelor's, what are the career paths that you guys can choose? And uh, I can think of four right now. I mean, there might be more, but I can think of just four. So one is you go do a PhD or a master's to academia. The second is you join some like high profile company which is serving millions of customers. The third is you start your own startup, you get into the startup ecosystem. And the second and the fourth is you don't know what really want to do, but you're exploring different fields. So you're probably going to jump around and figure out what is good for you, what you really want to do. So I'm going to go in each of the details for each one of these. So, Sarfraz, question answers. If you want to take question answer right now, we can do that. Or if you want to do that at the end, that's fine too. प्लीज स्टूडेंट्स, अगर आपने क्वेश्चन कोई करना हो तो यू कैन इमीडिएटली रेज हैंड एंड आस्क द क्वेश्चन, नो प्रॉब्लम एट ऑल. एंड प्लीज टॉक टू नबील, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आपके जो भी परेशानियां हैं, जो भी चीज़ें हैं, ये बड़ी जेन्युइन हैं, क्योंकि जिस तेज़ी से चीज़ें चेंज हो रही हैं, उस पर्सपेक्टिव से आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट सवालात हैं जो कि आपको पूछने चाहिए नबील से, कि हाउ द मार्केट इज चेंजिंग, और इस पर्सपेक्टिव से क्या क्या चीज़ें आपको डिस्कस करनी चाहिए. आपको नबील से बेहतर कोई बंदा नहीं होगा जो कि आपको बता सके इस वक्त यूएस में क्या हो रहा है, जिसका इफेक्ट आपको अगले 2 साल में नज़र आ जाना है. जब आपने ग्रेजुएट होना है, 1 साल में जब ग्रेजुएट होना है, आपको नज़र आ जाना है. सो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन एवरी पर्सपेक्टिव, एकेडमिक पर्सपेक्टिव ऑल्सो. अगर आपने रिसर्च पर्सपेक्टिव से आगे जाना है, इवन इंडस्ट्रियल पर्सपेक्टिव से भी आगे जाना है, तो प्लीज़ कोशिश करें अपनी ऑडियो ऑन कर दें अगर आपने वीडियो ऑन नहीं करनी तो. एंड प्लीज पार्टिसिपेट, बात करें नबील से, जो भी बात कर सकते हैं आप. प्लीज नबील, Okay, गो let me अहेड. start. So I'll start from like career path. If you want to go do a a master's or a PhD. So first of all, like bachelor's and master's and PhD, they're all very different degrees, right? And so a master is not a bachelor's. A PhD is not a master's. So that's something you need to understand. And bachelor's can there are mostly you go for breadth. So a lot of courses, not too deep in every one of them. When you go for a master's, it's going to be a few courses, maybe 10, 12, but you're going to go slightly deeper in it, and you probably have to do more proofs, more experimentation, more research per course. And PhD is an entirely different beast. It's like you spend a few years, like at least two, doing the master courses, and then finding a problem that you can solve, not just one, a few problems that you are willing to uh, tackle, right? And also you have to apply for your advisor who gonna sponsor that research, and he's happy with what you're doing. uh, so PhD it's mostly like you find an area and you go really deep in it. You go as deep as anybody can. So at the end of your PhD, you are kind of the expert, or maybe the only expert in that field or that particular problem. Or there are only a handful of people who can actually uh,
do the same work. Or आजकल जो the problem right now in getting admission, I was like in the graduate committee at my university when I was doing my PhD for 3 years, and the competition is very tough. Like if you want to go for a master's or a PhD, it's very, very tough. It's in the top five universities in US. I think it's close to 1%. If 100 people apply, only one get admitted. And for a master, it's slightly higher, but it's not too far off. For और जब मैं उधर एप्लीकेशन हम देखते थे तो we were usually a tag team with the professor and a graduate student who will interview the incoming student. Uh, and so the first cut off जो होता है वो होता है आपके ग्रेजुएट स्कूल पे, वो देखता है कि टॉप के जो 10% लोग हैं है ना, उनको हर एक को किसी तरीके से वो स्टैंक रैंक करते हैं, वो उनकी पब्लिकेशन से, उनके स्कोर से, उनके जीपीए से, उनके जीआरई से, और उनकी और जो भी वो सिग्नल्स देख सकते हैं. एंड देन दे probably keep just 10% of the top most people. And afterwards, at least Purdue का जहाँ मैं था उधर प्रोफेसर एंड अ स्टूडेंट, हर जो उन 10% जो सिलेक्शन है उसमें से हर बंदे का इंटरव्यू लेते हैं. And then they stack rank every one of them, and then they ask professors, if you have funding, would you be able to hire this person or that person, but they are ranked. So जो मैंने देखा है उसके अंदर everybody who got a PhD, even back then a couple of years ago, they have some publications, at least one, right? So if you want to go that route, understand that it's going to be tough, and it's you have to have a publication to get into a PhD. For masters, you don't need a publication, but the way things are changing, I think it's some research is important. हाँ, और दूसरा, you have to figure out what areas are you interested in, right? So your final year project, if you want to do research, try to figure out what area you are interested in and who are the people, who are the professors in other universities that are working in the same area. And if you can publish something in their related area, you get in touch with them, and that might help your chances in getting into a PhD program. Or or US के अंदर it's slightly different. Everything has to go through graduate school, and then only afterwards, like जो 10% में जितना भी number है जो final selection में आते हैं, only professor have like a say in admitting those students. Whereas in Europe, it's slightly easier. Again, if you know the professor, it's you in some university you can skip the first phase, and you can talk to the professor. If you did research in that area, it's good enough and they will probably hire you. And दूसरी बात जो इस में है वो है funding. Mostly if you get into a PhD program, if you're going into a top, let's say 30 schools in the US, or maybe even 50, or top schools in Europe, you will get funding for PhD. It's going to be enough to support you. And for masters, it's also, there's a lot of universities who also fund masters, like Canada may, even US may. Most of the students, they don't get funding initially, but once you get in, you can do TA, you can do RA, and you get funding. So that's one career path. So let me move forward. We have not a lot of time. Sir, I have a question. Sure. Sir, I wanted to ask, I'm doing an internship in cybersecurity, and for my FAP group, I'm BS Software Engineering. तो हमारा जो ग्रुप मेट्स है, हम सारे हमारा क्लैश कर रहे हैं, हम साइबर सिक्योरिटी को किसी तरह इंटीग्रेट नहीं कर पा रहे. तो ऐसा हो सकता है कि अभी मैं किसी और डोमेन में अपना FIP बना लूँ, तो मेरा इस पे कोई इफेक्ट तो नहीं होगा जब आई वुड गेट इनटू द मार्केट. मार्केट के लिए आई मीन मार्केट के लिए दैट्स नॉट टू, लाइक आपने कुछ भी किया वो दैट्स गुड इनफ. और डिपेंडिंग ऑन द मार्केट की किस तरह की होगी, एंड आई टॉक अबाउट दैट इन द एंड. अगर आपने रिसर्च में जाना है देन इट वुड बी हेल्पफुल इफ यू हैव सम पब्लिशेबल वर्क. अगर पब्लिकेशन है तो
that's that's the most important thing. अगर नहीं तो at least you have some like reports that you can submit with your application. I mean, Nabil, I believe what you're saying is कि अगर आप FIP पे काम कर रहे हैं और ऐसा काम करना चाहते हैं और your goal is to get a PhD हाँ, or to go for MS program in a nice place, then it perhaps would be a very nice idea to try to opt for a project जो कि रिसर्च वाला हो, जिसमें पब्लिकेशन के चांसेस ज़्यादा हों, और वो आप करके उस पर काम करके कुछ पब्लिश करने के काबिल हों, और वो आप हम्म, एटलीस्ट शो कर सकें टू योर PhD with committee. your PhD application committee. Yes. That's right. हाँ, यही मैं कह रहा था. Sir, I have a question. Sure. सर, रिसर्च में आप कोई फील्ड हमें रेकमेंड कर सकते हैं कि अभी कौन कौन सी फील्ड चल रही हैं? ऑब्वियसली ये तो मशीन लर्निंग, AI, NLP टाइप की, कंप्यूटर विजन की तो रिसर्च फील्ड चल रही हैं, लेकिन इनके अलावा अगर कोई और हट के जो आजकल रिसर्च फील्ड जो ज़्यादा ट्रेंड में है? I mean, so I mean, ये अच्छा क्वेश्चन है कि the thing is like I mean, you have to figure out प्रोफेसर्स जो कि यूनिवर्सिटीज में इस वक्त हैं, जिस यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई करना चाहते हो, फिगर आउट कि उन्होंने पब्लिश क्या किया रिसेंटली, राइट? और द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज, आर यू ओके इन working something in something that you don't like, agar if you haven't figured out what you want to do, and for a PhD I think that's not the right thing. And it's okay, it's okay if you don't know what you're going to do, you start something and then you eventually change. मगर अगर आपको आइडिया नहीं है कि किस प्रॉब्लम पे आपने काम करना है, किस एरिया में आपने काम करना है, then it's going to be hard writing the statement of purpose कि क्योंकि वो आपको लिखना पड़ेगा, वो that's a requirement. और उसके अंदर आपको ठीक ठाक रिसर्च करनी पड़ेगी कि जिस यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई कर रहे हो, उस यूनिवर्सिटी में कोई प्रोफेसर इस चीज़ पे काम कर भी रहा है कि नहीं कर रहा. अगर नहीं कर रहा तो यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना फजूल है, क्योंकि no one will look at your SOP. So, uh, so choosing the universities that are really close to your area that you want to work in is very important, and figuring out the professors who are working in the same area on the same problems. So there's a lot of homework involved here. ओके. नबील, अगर मैं समझाऊं सही तरह से स्टूडेंट का सवाल, वो ये कि अगर उसको अभी तक नहीं पता अपने एरिया का कि उसने किस पे काम करना है, तो आई थिंक द फर्स्ट थिंग शुड बी कि उसको अपना फिगर आउट करना चाहिए एरिया कि वो किस में काम करना चाहता है. और उसका That's तरीकेकार ये है कि एक एक तरीका ये है कि यूनिवर्सिटी देख ली जाए, एक तरीका ये है कि बड़े बड़े नाम देखे जाएं वो किस में काम कर रहे हैं, और फिर फिगर आउट करें कि वो कौन सा काम है जो कि उसको उसको ज़्यादा अपील कर रहा है, एंड गो फॉर दैट. If something like that that's can be done, that would be wonderful. हाँ, नहीं, इसी तरह वही मैं कह रहा था कि पहले आपको लॉट ऑफ रिसर्च करनी पड़ेगी कि व्हाट आर यू इंटरेस्टेड इन. जैसे मैंने इधर आपको ये जो सारे नाम है ना, ये मैंने पब्लिकेशंस के नाम लिखे हैं. सही Hmm. है, आप इनको एक्सप्लोर करें. Conferences. AI के हैं, विजन के हैं, NLP के हैं, ये नेटवर्क सिस्टम्स के हैं, सिस्टम यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम नेटवर्क्स, और फिर थ्योरी के हैं. इसके अलावा ज्योमेट्री और एल्गोरिथम्स के हैं. इन पब्लिकेशंस के जो आप एक्सेप्टेड पेपर है हर साल पिछले 5 साल के पढ़ें, उनके अंदर प्रोफेसर्स ढूंढें वो किस किस क्या क्या प्रॉब्लम ने सॉल्व की है, और फिगर आउट इफ दोज आर द प्रॉब्लम्स यू वांना वर्क ऑन, राइट? एंड देन यू कॉन्टेक्ट दोज पीपल और figure out like an area that you can work on. So research at that level in your FYP is going to be tough, because you do need like support from your local professors, right? आप I mean कुछ एरिया में आप काम कर सकते हैं, जैसे सिस्टम्स में हो गया, इवन NLP, nowadays even AI, क्योंकि most of the funding that's going in AI right now, right? So और वो आपको बताएगा कि most of the professors, even they were working in systems, now they are working in AI. Hmm. And AI is not just like building, हम इसके प्रोजेक्ट में भी बात करेंगे, मगर AI is not just like building models anymore. It's building models, serving models, optimizing models. So a lot of those things are kind of like
peripheral fields. So computer vision. And then there are YouTube channels where Stanford, MIT, हर एक का वो भी courses के online आ रहे होते हैं. There's a very good YouTube channel called 2 Minute Papers. तो वो सिग ग्राफ का वो सिग ग्राफ जिसका इसमें आई वाज मोर इंटरेस्टेड इन दिस वन. तो वो सिग ग्राफ के ना पेपर को 2 मिनट में एक्सप्लेन करते हैं. तो लिसन टू अ लॉट ऑफ दोस एंड फिगर आउट व्हाट यू वांट टू वर्क ऑन. और जो इम्पोर्टेंट चीज़ है ना वो ये है कि आप यूनिवर्सिटी वो सिलेक्ट करो जिसके अंदर कोई प्रोफेसर हैं कुछ ऐसे जो कि जिनके पास फंडिंग है और वो काम करें उन प्रॉब्लम्स पे जो कि आप जिस पे काम करना चाहते हो. क्योंकि दैट्स द ओनली चांस यू हैव. जब यूनिवर्सिटी के अंदर सिर्फ 1 to 2% लोगों का एडमिशन होता है तो यू हैव टू बी वेरी लाइक यू हैव टू डू अ लॉट ऑफ होमवर्क. नेक्स्ट स्लाइड पे चले. टाइम हाँ, काफी हो रही. श्योर श्योर. सो बिग टेक की मैं बात कर रहा था कि बिग टेक के अंदर आपको जो स्केल है ना वो बहुत ज़्यादा है, बहुत बड़ा है. दे आर सर्विंग बिलियंस ऑफ कस्टमर्स एट द सेम टाइम. द फोकस जो फोकस होगा वो ज़्यादा होगा इंजीनियरिंग एट स्केल पे. हर चीज़ विल बी वेरी स्ट्रीमलाइंड. आपको CI/CD पाइपलाइन, टेस्टिंग कोड, पुशिंग कोड into production और multiple like बहुत ही complex चीज़ होगी. It's highly rewarding. Mentorship भी अच्छी है. The problem जो हो कि इधर कि आपको पता होना चाहिए कि robust और scalable system कैसे बनाना है. So अगर आप इस एरिया में इंटरेस्टेड हैं तो आई मीन मोस्ट ऑफ द लोग इसी चीज़ में इंटरेस्टेड होंगे. लेकिन अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं तो यू नीड टू नो हाउ टू बिल्ड सिस्टम दैट कैन स्केल to billions of users, right? So that's very important. And मेरा नहीं ख्याल कि FYP से पहले आप लोगों ने कभी भी ऐसी किसी चीज़ पे काम किया हुआ है. I mean कोर्सेज आपने पढ़े होंगे मगर never did like actual work, right? But this is very important if you wanna go that route. But so that's one possibility. So the third one is if you want to do a startup. So startup is like you building everything. So the difference between startup and like big tech is big tech के अंदर आप किसी टीम का हिस्सा होंगे, आप junior engineer हो गए, you will slowly graduate to uh, senior positions or manager or director. Startup के अंदर you are one man team initially or you are a few people team that are doing everything. So आप प्रोडक्ट मार्केट फिट भी ढूंढ रहे हो, आप सेल्स के बंदे भी हो, आप you also are a tester, a developer, a manager. So the most learning nowadays, I think, I mean, always, I think it's in the startup ecosystem, जहाँ आप बहुत स्पीड में सीखोगे. पे आपकी बहुत थोड़ी होगी या नहीं होगी, मगर it's definitely a very risky thing. मगर ये वो एरिया जहाँ I think learning सबसे ज़्यादा होती है. So you have to rapidly build an MVP and keep on iterating. And the most important thing is you find customers that are willing to use your product. The fourth I intentionally added that's like most of the time, like मैं अपने पुराने ज़माने की बात सोचूं तो most of the people didn't know what they wanted to do, right? And so this is a valid concern. So किसी को नहीं पता था कि उसने क्या करना है. It takes some time. So in that case, what I was trying to say here is explore, right? So join a company for maybe a 6 months or a year, and if you don't like it, just switch, right? So keep switching until you find something that you like, or just start a business. So something like that. So any question regarding these 4 academic paths of a post-graduation career paths? Most of the students question पूछते हैं academia के. तो that's definitely like a high मेरा ख्याल high है in कि demand. इस वक्त मुझे जो लग रहा था वो ये आता है कि जो अभी मैं जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स अभी अभी जो ग्रेजुएट हुए हैं उनके जो हालात हैं वो उससे नज़र आ रहा है कि दे आर वेरी मच इंटरेस्टेड इन द सेकंड ऑप्शन, कि कैसे कंपनीज में जाया जाए.
या अपना स्टार्टअप किया है, क्योंकि कंपनी तो नहीं रख रही। तो ये एक बहुत बड़ा मसला हो गया। यानी मैं जो, यानी कि पहले नबील, पहले जो मुझे मेरे मेरा जो मुझे लगता था कि वो ये था कि बहुत कम स्टूडेंट होते थे जो कि पहले एकेडमिक्स में आते थे, लेकिन वो हमें ज़्यादा कांटेक्ट करते थे, क्योंकि इंडस्ट्री वाले लोग जल्दी से ज्वाइन कर लेते थे एंड दे जस्ट वो फेड अवे कर जाते थे। लेकिन नाउ द प्रॉब्लम हैज़ बिकम के लोग इंडस्ट्री में भी नहीं जा पा रहे, बिकॉज द इनिशियल जॉब हैज़ काइंड ऑफ evaporated, that has been taken over by agents, by AI agents। तो आप वर्क That's फ्लोज true. बनाने वाले काम हो, या आपने सिंपल जो आर्ट, यानी बेसिकली कुछ डिजाइनिंग वगैरह के काम करने थे, इवन रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन को गैदर करने का काम था, वो तो उठा के बाहर फेंक दिया इसने। तो वो जो इनिशियल हाँ। स्टेज थी पहले साल की स्टूडेंट्स की, उसको तो अब एआई ने रिप्लेस कर दिया, जो कि हमारे स्टूडेंट्स को काइंड ऑफ हम इम्पोज करते हैं, नहीं जी नहीं तुमने नहीं यूज करनी ये चीजें। तो वो तो उसके लिए तैयार हाँ भी but नहीं है। हाँ दैट्स अ वो वेरी बिग स्ट्रेटजी प्रॉब्लम। और हाँ हमारे वो एफआईपीस जो अभी ग्रेजुएट होकर गए हैं, उनमें से आई मीन जितने लोगों की मैंने, कुछ 17-18 लोगों की एवेल्युएशन ली थी प्रोजेक्ट्स की। 17-18 का मतलब क्या है? 17-18 मल्टीप्लाई बाय 3 या 4, तो विच इज अप्रॉक्सीमेटली 70 स्टूडेंट्स जो मेरे हमारे आईटीयू के थे। और नन ऑफ देयर वर्क वाज प्रोडक्शन लेवल, सो विच मींस दे आर आउटडेटेड फॉर, आउटडेटेड क्या, वो बेसिकली वो तो एंट्री भी नहीं कर सकते इंडस्ट्री के अंदर। I mean बात सही है और AI has changed everything like junior positions are just going away. So that's why in education system what I think is like AI को आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। सही है। हम्म, AI के बगैर गुजारा नहीं है अब। हम्म। तो यानी and you have स्पेशली to मुझे figure लगता out। है, स्पेशली मुझे लगता है कि जो जो फिनिशिंग वाला काम है, जो कि हम एकेडमिक्स में करवाते ही नहीं थे और ना ही हाँ। अगली दफा करवाएंगे, तो व्हाई नॉट मेक दैट एज ए नेसेसिटी। सिमिलरली एफआईपीस के अंदर स्टूडेंट्स अपने ऊपर काइंड ऑफ इम्पोज करें कि हमने प्रोडक्शन लेवल पे लेके जाना है अपने काम को, और हर सूरत में लेके जाना है, चाहे आप उसके लिए जितनी मर्जी हेल्प लें इन एआई एजेंट से। आई मीन बट द थिंग इज अगर मेक उसके श्योर दैट इट बिकम्स प्रोडक्शन लेवल। उसके उसके अदर भी उसके और कंसर्न्स भी है ना कि उसकी कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है अगर आप क्लाउड पे कोई होस्ट कर रहे हैं या फिर आपने बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड कोई एजेंट बना दिया तो उसकी LLM कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो किस तरह। और देन द क्वेश्चन इज लाइक हाउ कैन यू इम्प्रूव दैट। सही तो वो भी अच्छी प्रॉब्लम है एंड आई हैव सम प्रोजेक्ट्स फॉर दैट। शुड यू मूव ऑन इस यस, जो हम बात की ना इस पे मैं आखिर पे फिर आके बात करेंगे थोड़ी सी। श्योर श्योर। So let's so grand challenges. So these are some of the biggest challenges right now, right? So climate and energy, as you know, like fossil fuel तो almost खत्म करने वाले हैं हम लेकिन अब जो next big चीज है ना वो है कि data centers वो कहाँ लिखा है compute physical infrastructure there और वो बहुत ज़्यादा compute ले रहा है data centers they are just destroying natural resources और इसके खिलाफ बहुत ज़्यादा आवाज़ भी उठ रही है अब क्लाइमेट चेंज है हेल्थ एंड लॉन्जेविटी है ड्रग डिस्कवरी दिस इज अ गुड फील्ड लाइक रिसेंटली मोडर्ना एक कंपनी है जो जिन्होंने फाइजर ये सॉरी मोडर्ना ने ये कोविड की वैक्सीनेशन भी निकाली थी तो इन्होंने कैंसर की एक वैक्सीन निकाली है तो थ्रू AI so a lot of things are changing so so that's a very good problem to solve food and water security space multiplanetary life this but data centers is like जहाँ इस वक्त आप खबरों में देख ही रहे होगे कि बिलियंस का हंड्रेड ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट हो रही है and and then there's like physical systems what I mean by physical system is like robotic systems or uh, the next so LLM से आगे क्या है so people are use China इस वक्त dominate कर रहा है robotics में आपने उसकी recently देखी होगी कि उसके robots like are racing faster than Usain Bolt uh, and so इस वक्त बहुत ज़्यादा जो जोर है ना वो है कि इन एरियाज के अंदर इन्वेस्ट किया जाए और लिटरली ये चीज़ इनके माइंडसेट में ही है कि किस तरह वर्कर्स को रिप्लेस किया जाए और एंड आई एम टॉकिंग अबाउट द बिलियनियर ओलिगार्क्स वर्कर्स को रिप्लेस किया जाए और किस तरह इन चीज़ों को वारफेयर में यूज़ किया जाए। सही है तो
and then future of work. Cybersecurity is also a very important thing. Trust and misinformation, that's always been, I think, अगर आप न्यूज़ देखो तो that's a big concern कि क्या हो रहा है, कितना झूठ बोला जाता है. Education, mental health, loneliness, governance and democracy, जो भी. So ये सिर्फ एक स्लाइड है, मगर here I mean जब आप कोई प्रोजेक्ट कर रहे हो तो the most important thing is the core concept क्या है, and does it have any strategic value. There's a book, it's called, मैंने इसका लिंक कहीं शेयर किया इसी स्लाइड्स के अंदर. It's called the art of forgot the name. मैं आपको बताऊंगा, वो बुक आप पढ़ोगे ना तो आपको समझ आएगा कि ये इन सवालों का क्वेश्चन के आंसर कैसे करना है. द कोर कॉन्सेप्ट क्या है, स्ट्रेटेजिक वैल्यू क्या है, टेक्निकल फिजिबिलिटी और होराइजन, लाइक वेयर डू यू गो वंस यू बिल्ड द प्रोडक्ट. सो दीज आर द questions you have to keep asking. Like, अगर मैं कुछ चीज़ बना रहा हूँ तो is there anyone who's going to use it, right? I have seen people or very very educated people, like हमारे दोस्त थी, they build something from a totally engineering point of view. This is excellent, this is, and nobody used it, right? Because it wasn't solving any real problem for a customer. So जो प्रोजेक्ट्स मैं बता रहा हूँ, या अगर आप कुछ और कर भी रहे हो तो मेक श्योर कि यू हैव सम कस्टमर्स, they will gonna use it, right? So let's now I'm gonna jump into the projects, right? So project number 1. So imagine like आप में से कितने लोगों को CAD का पता है, 3D मॉडलिंग का, जो पार्ट्स बनाए जाते हैं इंडस्ट्री के अंदर. सो AutoCAD, कोई अंदाजा है आप लोगों को? Sarfraz, are you still there? I'm still there. मैं Students, आपको अंदाजा है इस बारे में, कैट के बारे में? सर सुना हुआ है लेकिन ज्यादा No, डिटेल sir. नहीं पता. यार बोलते क्यों जो नहीं भी आप लोग यार? बोला करें यार, जो प्लीज. आप जब पूछा करें फौरन बताया करें. चले शाबाश. अच्छा, जो कैट बेसिकली क्या होता है कि इसे कंप्यूटर एडेड डिजाइन, सही है. आपने ये पीस देख रहे होंगे, आपको पता नहीं कितना क्लियर नजर आ रहा है, बट दैट्स लाइक अ 3D पीस जो कि मशीन का कोई हिस्सा बनता है, सही है. और कैट बनाने के अंदर बहुत ज़्यादा इश्यूज होते हैं क्योंकि इट्स अ वेरी टाइम कंज्यूमिंग वर्क, मगर इट्स नॉट वेरी नॉट कॉम्प्लिकेटेड फ्रॉम द पर्सन हु इज बिल्डिंग दिस. It's complicated from the point of view of algorithms, but so तो पहला प्रोजेक्ट है वो ये है कि आप एक AI सिस्टम ऐसा बनाएं जो कि वाटर टाइप टॉलरेंस चेक 3D मैकेनिकल मॉडल्स क्रिएट करने में मदद करे, सही है. एंड दैट्स अ वेरी बिग इंडस्ट्री. अगर आप ऑटोडेस्क को देखें तो it's kind of $100 billion industry, and their tools are okay, but it's not the best. So there is a lot of startups who are building this, and I don't think this is a very difficult problem. अगर आप OpenSCAD को देखें तो दैट्स काइंड ऑफ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, राइट. सो वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के ऊपर अगर आप LLM लगा के एक एजेंटिक सिस्टम, मल्टीपल एजेंट्स मेकिंग श्योर द पार्ट इज टू द स्पेक. So this is a very good project that you can do, and you can go find people in industry who do this work all the time, और उनके आप प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, सही. सो सरफराज, तुम्हें इस प्रोजेक्ट से समझ आई? हाँ, मुझे समझ में आई. यानी मैंने तो देखा सो भी हुआ है ये चीज. तो ये हर जगह इंडस्ट्री में अगर आप जाओगे ना, खसूसन मैकेनिकल इंजीनियर्स को पता होगा कि ये कितनी इंपॉर्टेंट हाँ. प्रॉब्लम है. Or they spend like multiple courses learning well, multiple years, I think, how to build these sketches and tolerances, and then build these, and then use the software to build these models. So it's a very time consuming process. Or now AI can speed this up, really make it really fast. So I think I know there's a value in it because I worked for Autodesk for a year. So I know there's a value for this, and there are startups who are doing this right now. थोड़ी सी गाइडेंस मैंने आपको इधर दे दी है कि नेचुरल लैंग्वेज स्केच पार्सर किस तरह आपने कंस्ट्रेंट वेयर ज्योमेट्रिक ऑपरेशंस बनाने हैं. BREP is kind of a representation or parametric like mathematical representation.
और इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो है कि आपकी बूलियन ऑपरेशन, यानी कि यूनियन, दो ऑब्जेक्ट्स का यूनियन लो, डिफरेंस लो, जिसमें सेट थ्योरी में आपने पढ़ा होगा. Anyways, so there are some references to papers, but mostly up you will search online and you'll see if you know somebody who's working in this area. Go talk to them, figure out how did they build these parts, and figure out how can you implement this. I think it can be done in less than a year. Well, I mean 90% to nahi, like let's say 80% आप ये काम कर सकते हो. There's still you need, because underneath there are algorithms that are very complex, but you are not doing that. You're using something like a geometric solver. Like there are libraries called Seagull or other libraries that you can use in the back end. अच्छा So let's नबील, एक move. बात बताओ कि इसी इसी तरह आई वाज जस्ट थिंकिंग कि मैं आजकल मेरा कज़न है जो आया हुआ है जो बड़ी सिविल इंजीनियरिंग की बड़ी बातें करता है, तो आई वाज हाँ जस्ट थिंकिंग कि दिस कैन एक्चुअली आल्सो बी एक्सटेंडेड टू कि हाँ, आपने घरों के डिज़ाइन और इस तरह की चीज़ें बनानी है, बिकॉज वो भी exactly. डिज़ाइन So बिल्कुल ऐसे ही होते हैं कि वो ऊपर से देख रहे हाँ, होते हैं कि यार ये आपके so पास इतना एरिया है, इसको कैसे ऑप्टिमाइज किया जा सकता है ऑटोमेटिकली. that's a very good problem to solve. I mean, मैं किसी को जानता हूँ they raised funds for that हम्म. exact problem. सही है. तो ये जो मैं आइडियाज आपको दे रहा हूँ ना, ये सिर्फ कह लो कि ये सिर्फ रेफरेंसेस हैं. सो यू सी, मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जितने भी आइडिया, एटलीस्ट इनमें से मोस्ट ऑफ द आइडियाज हैज वैल्यू. और आप चाहो, यू फिगर आउट व्हाट यू वांट टू डू. लाइक 3D कैड मॉडल आपने मैकेनिकल इंजीनियर्स के लिए नहीं बनाना, तो सिविल इंजीनियर्स के लिए, होम इंटीरियर डेकोरेशन के लिए, जेंडो को तो तुम जानते हो सरफराज. सो इंटीरियर डेकोरेशन के लिए, हाउस मॉडलिंग के लिए, आप किसी भी चीज़ के लिए भी काम कर सकते हो. एंड द इम्पोर्टेंट थिंग इज इफ यू spend a year on this one and at the end of the year आपके पास कस्टमर हो जो आपको पैसे देने को तैयार हो, तो यू आर सेट. आई मीन आपको कोई बिग टेक ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है. just grow this thing as much as you can and find more customers. So wo is more successful than working for somebody else. uh, Project 2, it's very similar, but it's like, so project planning के अंदर बात की कि आपने 3D मॉडल्स कैसे बनाने हैं in the software, right? अब जो प्रोजेक्ट 2 है ना, इसी तरह की जो, अब ये भी बहुत बड़ी इंडस्ट्री है जिसे कहते हैं CNC मशीनिंग की. सही है. अब आप इधर देख रहे होगे, देयर इज अ ड्रिल बिट दैट्स बिल्डिंग द दैट 3D पार्ट इन रियल, राइट? सो आपको ये पार्ट चाहिए होते हैं गाड़ियों के अंदर, जहाज़ों के अंदर, और एनी काइंड ऑफ मशीनरी जिसके अंदर जो कॉम्प्लिकेटेड पार्ट्स होते हैं वो नहीं मिलते, वो इन मशीनों के थ्रू, इन्हें कहते हैं CSC 5 एक्सिस 7 एक्सिस मशीन्स, जिनके थ्रू आप ये पार्ट्स बनाते हैं. तो and that's this is something that also can be solved, not 100%, but 80% through AI generation, because at the end of the day जब ये टूल पाथ जब बन रहे होते हैं तो there is exact like codes कि मूव करो ड्रिल बिट को X पोजीशन से Y पोजीशन, और कर्व, इनके सारी ज्योमेट्रिक प्रॉब्लम्स हैं. and this is very close to my experience in the past. So and I think there's a lot of value in this because अभी जो solutions exist करते हैं ना इस problem को solve करने के लिए, that's our the software is very expensive, like a couple of $1,000 a month, or they need like people who are experienced on that software. So if you can just इस प्रॉब्लम को आधा भी सॉल्व कर दो ना, कि you can give them a part that's saving, let's say, 5 hours of their work, and the rest they can do manually, that's also a very good problem to solve. Any questions so far? स्टूडेंट्स, आपको ये आइडिया समझ में आया है? हेलो, ये वाला प्रोजेक्ट आइडिया समझ में आया है? यस उमर, सर. ठीक है. इसको ना, इसकी आप, ये मैंने इधर नीचे लिंक शेयर किए हैं, तो आप इसकी ना वीडियो भी ये देखना हो यूट्यूब पे, तो आपको समझ आएगा कि क्या चीज़ है. ये पाकिस्तान में भी लोग काफ़ी मशीनिंग शॉप्स हैं. हम्म. सो ये एक अदर आइडिया, आई मीन इमेज में तो आपको समझ नहीं आएगा. ये आइडिया ये है कि कोड ऑप्टिमाइजेशन इंजन, लेट्स से यू बिल्ड समथिंग और ये आई थिंक दिस इज काइंड ऑफ अ गुड आइडिया, बट द आइडिया इज दिस कि आप एक वर्केबल सॉल्यूशन इंप्लीमेंट कर दिया सॉफ्टवेयर में. हाउ कैन यू टेक दैट implemented solution
and optimize the whole thing with making sure that it's still the same thing, like it was still like passing the same thing, producing the same input output. uh, so kind of using LLMs, or mostly an agentic system, to modernize or optimize your code base. So, and I know somebody who is working on this uh, exact problem, right? So, और ये सिर्फ सॉफ्टवेयर तक नहीं, अगर इसको एक रिसेंटली मैं एक स्टार्टअप को देख रहा था, तो दे टेक chip designing and they build like the first model, and then they use the optimization techniques to like making the speed of the, let's say, the LLM inference faster. So this is a good problem to solve. मुझे नहीं लगता कि ये आसान है, मगर दिस इज अ वेरी गुड प्रॉब्लम टू सॉल्व। अगर आप शुरू स्मॉल कर सकते हैं, आप शुरू देखें कि आप जिस तरह कंपाइलर ऑप्टिमाइज करता है, सही है, उस तरह ऑप्टिमाइजेशन शुरू करें, एंड देन यू गो ऑन टू बिगर बिगर प्रोजेक्ट्स। दिस इज कॉम्प्लिकेटेड थिंग, बट दिस इज, आई थिंक इट्स अ वेरी गुड फाइनली प्रोजेक्ट, और समथिंग दैट यू कैन कैरी So, ऑन लाइक। Nabil, मैं बस I'm just thinking के कोड ऑप्टिमाइजेशन इंजन जो है वो बेसिकली हमारे पास क्या होगा, यानी बेसिकली हमारे पास क्या इसके लिए कुछ डेटा अवेलेबल होगा कि फॉर एग्जांपल हमने जो कोड ऑप्टिमाइज करना है, क्या इट विल बी एन एल्गोरिथमिक प्रॉब्लम और इट विल बी ए एलएलएम बेस्ड प्रॉब्लम? इट यानी कुड बी कि एन फॉर LLM एग्जांपल बेस्ड, आई मीन static। अगर कंपाइलर को आप सोचो ना, कंपाइलर इज डूइंग अ लॉट ऑफ लाइक एल्गोरिथम्स, राइट? हम्म मगर मैं वो नहीं, वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। हम्म मैं आपको ये कह रहा हूँ कि आप एक एजेंटिक टीम लेकिन अगर बनाएं। आप एलएलएम के थ्रू अगर आप करेंगे तो मुझे पहला सवाल तो ये है कि हमारे पास डेटा कहाँ से आएगा, जो कि ऑप्टिमाइज डेटा जो है, नहीं इसका ऑप्टिमाइज कोड ये होगा, इसका ऑप्टिमाइज कोड ये होगा, क्या हमारे पास इस तरह हाँ, की कुछ वो डेटा अवेलेबल है? बेसिकली बेसिकली आपके पास बहुत अच्छे मॉडल्स एग्जिस्ट करते हैं। किमी 3 हो गया, क्वेन हो गया, सही है, वो दे ऑलरेडी ट्रेन ऑन दीज काइंड ऑफ ऑप्टिमाइजेशन एंड कोड जनरेशन, सही है। हम्म You can generate a code, or there is another agent that actually runs it in a sandbox, right? To figure out हम्म so given any, the problem here is given any working solution, your agentic solution will take it and build like a runner, a tester, a runner, और सारे agents आपस में काम करें how to optimize this one specific portion. The main challenging in this work is कि आप ये जो मॉडल यूज करेंगे तो उसकी कॉस्ट को कैसे कंट्रोल करेंगे, सही है। अगर तो आप सबसे महंगा मॉडल यूज करें तो दिस इज अ वेरी एक्सपेंसिव प्रॉब्लम टू सॉल्व। मगर अगर आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि छोटी प्रॉब्लम्स इसमें लें, और आप लोकल मॉडल्स आपके रन कर रहे हैं और लोकल रन करें आपकी मशीन पे, तो फिर इस प्रॉब्लम को अगर आप सॉल्व करें, दैट्स आई थिंक मच मोर वैल्यूएबल देन, और आई थिंक दैट्स मोर इम्पोर्टेंट कि एज ए यूनिवर्सिटी लेवल पे आपने फिगर आउट करना है कि इसकी एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया क्या होगा इस प्रोजेक्ट का, मगर without losing a lot of money, run this on local machines, local LLMs, हम्म which will take time for sure. हम्म Let's move on. जो एक और आजकल है ना काफी जोर जिन चीजों पे, वो है ऑन डिवाइस वॉइस असिस्टेंट्स। अगर आपने रेबैन मेटा किसी ने यूज की है तो आपको पता होगा कि वो it's okay, it's not the best user interface। आप कहते हैं okay meta, and then you talk to it and it responds back, and there's not a lot of like uh, interactivity, सही है। मगर imagine कि आप ये किसी नाबीने के लिए बना रहे हैं ये डिवाइस, how would you change the interface, voice interface that can actually help them? So I think there's a big market here, or this is not very complex, this like you have इसके अंदर आप लोकल मॉडल भी यूज कर सकते हैं। आप ये चाइना से ये रॉकेट की एनक ले सकते हैं, आई थिंक इट्स $60 एंड कनेक्टेड विद योर फोन, और आपकी जो मेन प्रोसेसिंग है वो आपके फोन के अंदर होगी, एंड फिगर आउट कि हाउ टू मेक इट यूजेबल, हाउ टू इंटरेक्ट विद योर कंप्यूटर थ्रू वॉइस। लेट्स से मैं कोडिंग कर रहा हूँ, तो मैं टाइपिंग जरा सी भी नहीं कर रहा, मैं बस उसे बता रहा हूँ कि ये लूप लिख दो, ये कर दो, वो कर दो, और
So the important thing is uh, the interaction, the voice interaction, वो कैसे होगा? And I think it's very valuable thing. Uh, ये तो आसान ही है समझना, ये that's I don't think it's very complicated, but it's complication होगी जहाँ आपने मॉडल्स को क्वांटाइज करना है और आपने अपने अपने एजेंटिक सिस्टम बनाना है जो दैट विल अंडरस्टैंड के आप क्या कहना चाह रहे हो और ओवर टाइम वो लर्न करे. सो आई थिंक दिस इज अ गुड प्रॉब्लम और इट कैन बी डन इन लाइक 6 months to well on actual not an actual device but let's say आप अपने कंप्यूटर पे कर रहे हो then you port it over to a device. So I wouldn't port it over to a device for a 1 year project, especially FYP and undergraduate level. But अगर आप अपने कंप्यूटर पे करो that's good enough I think. So एक मिनट मुझे एक बात decentralized. बताओ, ये जो तुमने जो पिछला आइडिया बताया है, इसमें कौन सा ये बात? डिवाइस है, ये हमें कहाँ से मिलेगी? नहीं मैं कह रहा हूँ कि ये डिवाइस ना भी लो, ये तो मैं उधर से मिल जाएगी. ये जो रॉकेट की है ना, आई थिंक यू कैन बाय इट ऑफ टेमू और चाइना की है ये डिवाइस आई थिंक. और एंड दैट्स ये 60 कितने की bucks. आती है? 60 60 बक्स डॉलर्स. और आई मीन मेरे कहने का मतलब है कि डिवाइस आपको लेने की भी जरूरत नहीं है, आप अपने कंप्यूटर यूज करो. तो अच्छा, सिमुलेशन में चला दो? आई मीन सिमुलेशन नहीं, आप बेसिकली मॉडल तो आपने इवेंचुअली देयर आर मल्टीपल पोर्शंस राइट. एक बैकएंड होगा, एक आपकी ऑन डिवाइस एलएलएम्स होंगे. तो आप उसको सारा आप डॉकर फाइल्स के अंदर या फिर उसको डॉकर्स के अंदर तो नहीं, लेकिन आप उसको लोकल मशीन पे रन करके उसकी बता दो. बेसिकली इस प्रोजेक्ट का जो गोल मैं जो आ रहा था ना वो ये था कि आप शुरू करो और अपने अपने कंप्यूटर पे करो एंड इवेंचुअली यू पोर्ट इट टू रॉकेट. एंड हम्म एंड जो इम्पोर्टेंट थिंग है वो ये है कि आप हाउ कैन यू इम्प्रूव द वॉइस असिस्टेंट. सही है. हम्म हम्म तो वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है बनिस्बत कि आप इसको किस डिवाइस पे रन कर रहे हो, हम्म इन माई अंडरस्टैंडिंग. ओके. फिर डिसेंट्रलाइज 3D स्ट्रीट मैप. सो इसका जो आइडिया था ना, आई मीन मैं खुद इस पे ना ज़रा सा क्लियर नहीं था, लेकिन देयर इज अ कंपनी कॉल्ड हाइव मैपर. और हाइव मैपर क्या है कि ये एक मुझे नहीं पता कितना बड़ा फ्रॉड करें कि नहीं करें, बट व्हाट दे डू दे बिल्ड योर डिवाइस और आप अपनी गाड़ी पे लगा देते हो एंड देन यू जस्ट ड्राइव अराउंड एंड इट्स कलेक्टिंग ऑल द डेटा, 3D डेटा ऑफ डेटा. व्हाट काइंड? वो इज इट विजुअल तस्वीरें डेटा लेता और रहता ऐसे? है. बिजनेस विजुअल डेटा. सही है. हम्म और विजुअल आई थिंक इट्स मोस्टली विजुअल डेटा बट आल्सो मे बी जीपीएस लोकेशन, डेफिनेटली जीपीएस लोकेशन और समथिंग एल्स. और वो आपको ना क्रिप्टो में पे कर रहा होता है. सो द मोर यू हम्म गिव देम डेटा दे गिव यू इन बैक इन क्रिप्टो. क्रिप्टो वाला आइडिया तो वो मैं कहता हूँ वो तो फ्रॉड है, मगर द आइडिया इसके, हाँ क्रिप्टो वाले सारे इधर जो ओलिगार्क्स हैं उनके कंट्रोल में सारा क्रिप्टो का जो भी है आजकल खसूसन. हम्म अ, जो जो आइडिया है ना वो बेसिकली ये है कि वो मार्केट्स जैसे पाकिस्तान हो गया जिसके अंदर आपको गूगल मैप्स है, मगर इट्स इफ यू वाना लाइक अगर आपने एड्स चलानी है, सही है, तो यू हैव टू पे गूगल और फेसबुक राइट. तो एंड दे टेक अ लॉट ऑफ मनी आउट ऑफ योर country. So why not just build this and start this ads business, right, वाओ, yourself? दैट्स वेरी वेरी नाइस. So और लेकिन मसला ये है कि अगर वो ऐड चलाते हैं यूट्यूब के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, हमारे पास इस तरह के नेटवर्क्स नहीं है, तो फिर क्या करेंगे? I mean I mean देखो दैट्स अ वो बात आपकी सही है, लेकिन बहुत ज्यादा अल्टरनेटिव सोशल मीडिया आ रहा है आजकल. उसकी रीजन ये हम्म है जो कि सोशल मीडिया मीडिया एक बहुत बड़ी पावर है जो कि गवर्नमेंट आपके हर जगह आपको बहुत कंट्रोल करती है. और आपको पता ही है हम्म कि सोशल मीडिया खुसूसन व्हाट्सएप और फेसबुक दैट्स ऑल लाइक मैं तो 10-7 साल काम किया तो आई नो दैट इसके अंदर कितने एजेंट्स हैं अच्छा. CIA के और मोसाद के. सो इट्स बेटर टू स्टार्ट समथिंग ऑफ योर ओन राइट. तो उधर है देर ब्लू शील्ड नहीं है, उसका नाम क्या है, एक एक पैलेस्टीनियन बंदे ने एक बनाई है, अप 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 स्क्रोल्ड. सही है, वो है. उसके अलावा ब्लॉक्स है जो कि ट्विटर का पुराना जो बंदा था उसने बनाई है. तो देर देर आर अल्टरनेटिव्स दैट यू कैन यूज. और द आइडिया इज लाइक ये जो प्रोजेक्ट है ना ये मेरा था कि
आप 3D की वर्ल्ड में एंटर होना चाहते हो ना, तो दिस इज अ गुड। अब जो मशीन लर्निंग मॉडल्स हैं जो कि ओन डिवाइस रन कर सकते हो, दे आर केपेबल इनफ कि वो वो फिगर आउट कर लेंगे क्या लिखा हुआ है, ये मोस्टली बिजनेस क्या होगा। तो आप वो डेटा टैग करते जाओ और आप उसकी जीपीएस लोकेशन के साथ फिर आप उसको बैकएंड पे उसको आप, मैं ये नहीं कह रहा कि आप 3D इमेजेस क्रिएट कर लो, लेकिन आप वो नेटवर्क ऑफ वो क्रिएट कर लो कि बिजनेस किधर एग्जिस्ट करते हैं, मोस्टली क्या करता होगा, और देन फिगर आउट अ वे टू सेल एड्स, और फिगर आउट अ वे कि उन लोगों के पास जाओ और कहो कि अच्छा आप इधर हैं, हमारी ट्रैफिक इधर से आती है इधर। तो बेसिकली डेटा एनालिटिक्स का फिगर आउट के हाउ टू सेल एड्स टू दीज बिजनेसेस एंड टू पीपल हु आर यूजिंग whatever services you have. मगर एज अ फाइनल ईयर प्रोजेक्ट it's going to be good enough to figure out कि आप सेंसिंग कर रहे हो and you are collecting data and you are somehow presenting the data in a form that you can extract information from. सही है? But in the long run it's much more valuable कि आप इसको एड्स वाले बिजनेस की तरफ लेके जाओ। सो ये साइबर सिक्योरिटी की भी बात हो रही थी। तो आज देयर इज अ लॉट ऑफ वर्क गोइंग ऑन इस वक्त के एआई पे कि एलएलएम डूइंग द साइबर सिक्योरिटी वर्क। जो खुसूसन जब से डीप फेक्स आई हैं तो बहुत ज़्यादा इश्यूज हैं आजकल जो जिन लोगों को नहीं पता, खुसूसन सीनियर्स को, और अ, जो 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 जो- जिन्हें पहले कभी मोबाइल यूज़ नहीं किया वो लिंक्स पे क्लिक कर देते हैं और उनकी सारी इंफॉर्मेशन लूज हो जाती है, बैंकिंग के वो पैसे भेज देते हैं स्कैम आर्टिस्ट को। सो इस प्रोजेक्ट के जो मेन थीसिस था ना, वो जो प्रेमिस था वो ये था कि बिल्ड एप्लीकेशन that's monitoring your phone or your laptop is working as like a anti-spam, anti-viral kind of a thing, or over time वो आप उन चीज़ों को लर्न कर रहे हो और बेहतर उसे बना रहे हो कि वो डिटेक्ट कर रहा है। So you can sell this to people who are using mobiles or or kind of like an antivirus thing, anti-scam thing. So and there's a lot of people who are doing research in this area. I know कि इस पे भी लोगों को फंडिंग अच्छी खासी मिली हुई है, और दैट्स वन ऑफ द सो साइबर सिक्योरिटी इज वन ऑफ द बिग चैलेंजेस, खुसूसन एआई के बाद। अब जो कुछ मॉडल्स हैं जैसे फेबल है, दे कैन हैक अ सिस्टम, राइट? So definitely there's going to be a lot more investment in this area, and it's already been one of the top funded area right now. तुमने फेबल को यूज किया? हाँ मैंने किया है, I mean, I wasn't that impressed, but it's देखो इस पे हम डिस्कशन कर सकते हैं बाद में, लेकिन एलएलएम इज जस्ट लाइक अ नेक्स्ट टोकन जनरेट करो, राइट? तो इट्स ट्रेन्ड ऑन सच अ बिग सिस्टम एंड इट्स मल्टीपल एजेंट्स वर्किंग टुगेदर के आपको लगता है कि दैट्स रियली इंटेलिजेंट, बट देयर आर न्यू मॉडल्स दैट आर कमिंग अप दैट आर going to be, I think, specialized, like especially the world models, right? So code generation के लिए LLM is very good, right? So it can do a lot of good work. और जैसे 3D CAD का प्रॉब्लम है, सही है। हम इवन जो मैंने शुरू के प्रोजेक्ट प्रेजेंट किए हैं, I mean that are using LLMs to build something, and that's I think is a good use case. बट एलएलएम नहीं जानता कि वो चीज क्या है जो 3D वो बना रहा है। जो वर्ल्ड मॉडल्स है ना, उसके अंदर आप एक नेक्स्ट टोकन टू टोकन की बजाय एक विजन भी लेके आ रहे हो, सही है। तो आई थिंक दैट्स उस पे लोग काम कर रहे हैं और वो बहुत जगह यूज होता है। एंड दैट माइट बी स्पेशलाइज्ड केस ऑफ मॉडल्स दैट आर गोना बी गुड फॉर दैट पर्टिकुलर एप्लीकेशंस, आई बिलीव। ये अगर आप लोगों ने नहीं देखी वीडियो, तो ये वीडियो ना एक फेसबुक के अंदर ना एक टीम थी, आई थिंक देयर स्टिल देयर, डायरेक्टर का तो मुझे पता है वो नहीं है, लेकिन कोडेक एवाटार की, कोडेक एवाटार्स ये थे कि अगर आपने ये वीडियो देखी ना लेक्स फ्रीडमैन की और मार्क जुकरबर्ग की, इसके अंदर ये इन्होंने हेडसेट पहना हुआ है एंड दैट स्कैनिंग योर फीचर्स, और उन्होंने पहले से स्कैन लिया हुआ था 3D स्कैन, एंड दैट्स आपकी जितनी भी जो वीआर के अंदर इंटरेक्शन है ना, तो अगर आपने ट्राई आउट करो, आई वर्क फॉर दिस टीम फॉर सम टाइम, तो इसको ट्राई आउट करो, इट्स वेरी इंप्रेसिव वर्क।
मगर बैक देन 4-5 साल पहले it wasn't like कि you need very complicated uh, equipment to get the 3D image of your face, and then I think you have to do like 70 or 80 different expressions to record all these things. मगर ये आइडिया इज स्लाइटली डिफरेंट. ये आइडिया है कि आप जो लेटेस्ट एंड ग्रेटेस्ट मॉडल्स हैं इस तरह के वीडियो जनरेशन के उसको यूज करो और देन then then help somebody do therapy for like they can talk to their deceased ones. ये ऐसा आइडिया है जो कि आई डिस्कस विद अ बंच ऑफ पीपल तो और आई नो सम गाय हु इज अ neurologist, a very educated person. His mother passed away इधर अमेरिका में, अमेरिकन ही है, तो like 2 years ago, right? And he has some issues, I think. तो वो उसने एआई के अंदर एक पर्सोना बनाया अपनी वालदा का, और he talks to that AI model, and I was like amazed कि लोग इसको इस्तेमाल करते हैं. And then I looked it up, and there's a bunch of things like this in the past. So आइडिया ये है कि आप एक इमेज लो और उससे वो मॉडल बनाओ जिससे वो बात कर सकें, और जो यूज़र है ना वो किसी डिसीज्ड वन से बात कर सकें. और इस आइडिया को ना सिर्फ बिलीवमेंट का नहीं है, ये आइडिया है जैसे अगर तुम्हें याद होगा सरफराज, हमने काफ़ी सालों पहले एक बात की थी कि अगर आपने हिस्ट्री लेसन्स पढ़ाने हैं तो यू कैन सो create and this can be done, right? आप हिस्टोरिकल फिगर्स की तस्वीरें लेके आओ, उनको 3D जनरेट करो और लेट्स टॉक टू देम. आई मीन डेफिनेटली आपने पूरा सिस्टम बनाना है जो स्क्रिप्ट उन्हें दे, मगर इट्स गोना बी वेरी इंटरेस्टिंग learning experience for, let's say, history students or bereavement. Quick therapy is I mean, you would be amazed कि कितने लोग AI chatbots से बात करते हैं. It's amazing. It's not just कि LLM जो अब आया है, इससे जो पहला वर्जन था जो कि काइंड ऑफ लाइक हार्ड कोडेड लिस्प यूज करते हुए लोग करते थे. देयर इज अ कंपनी जिसको मैं जानता भी हूँ, उसके सीईओ को. आई मीन ही इज रिटायर्ड नाउ, बट उनके पास तकरीबन 1 बिलियन से ऊपर कन्वर्सेशंस हैं पड़ी हुई पिछले 10-15 सालों में, जहाँ लोग एआई से बात करते हैं. और आई डोंट नो, so there's a lot of like people who can use these kind of things. The other thing is like there are, अगर आप देखो कि नई जो गेम्स आ रही हैं उसके अंदर आप कैन एक्चुअली टॉक टू कैरेक्टर्स, सो वो भी उसके अंदर भी बहुत हाई, बहुत क्वांटाइज्ड एलएलएम्स यूज हो रहे हैं. So I think this is a good idea. I mean, I don't know what do you guys think, but I think it's a good idea. So the next project, अभी तक आप लोगों के कोई क्वेश्चंस हैं, कोई आइडिया आपको अच्छा लगा, कोई नहीं लगा अच्छा? Any questions? Sarfaraz, stay. चलो मैं अगला क्वेश्चन करता हूँ, अगला प्रोजेक्ट पे जाते हैं. सो प्रॉब्लम यहाँ ये है कि आई वांट टू रीड अ लॉट ऑफ पेपर्स, रिसर्च पेपर जो कॉन्फ्रेंसेस मैंने पहले बात की हैं, मगर देयर इज नो like मेरे पास इतना टाइम नहीं कि मैं वो पढ़ सकूँ. I want to read those papers, but I don't have time to like spend. But I have time when I'm driving to office and back, right? So imagine like we have like a service where I can say I can pay for the service, and then these are the papers and I want to study, right? So जब मैं गाड़ी चला रहा हूँ तो वो उस पेपर को पकड़े, उसको सिंप्लीफाई करे, or it presented as a podcast, right? So what is the problem it's solving, how it's solving it, why it's important, like what is the actual content, and then अगर मुझे लगे कि अच्छा पेपर है तो I can go and study this, right? So I think the market for this is like people who are doing research, like professors or researchers. सरफराज, तुमने कुछ कह रहे थे? सर नबील, आई एम ऑडिबल? हाँ अब हो. सर सरफराज का ना पीसी ऑफ हो गया, तो आप जरा 2 मिनट ब्रेक ले सकते हैं? अच्छा सही है, चलो ब्रेक लेते हैं थोड़ी देर. इतनी देर में अगर आप लोगों के कोई क्वेश्चंस है ना तो वो आप पूछ लो.
किसी भी बारे में, प्रोजेक्ट के बारे में, करियर के बारे में। Sir, I have a question. जी बोले। सर, जब हम किसी एफवाईपी आइडिया को प्रेजेंट करते हैं अपने सुपरवाइजर को, तो मेनली हमें ये जो है ना आर्गुमेंट दिया जाता है कि बेटा ये तो ऑलरेडी इम्प्लीमेंट हो चुका है, आप काइंडली जो है ना कोई और आइडिया देख लें। तो ये इशू जो है ना ये काफ़ी फेस करने को मिलता है। तो इसको कैसे टैकल करें? मतलब जैसे आपने एक प्रोजेक्ट आइडिया दिया था, आई गेस प्रोजेक्ट नंबर 3 और 4, जो कोड ऑप्टिमाइजेशन इंजन और ऑन डिवाइस वॉइस असिस्टेंट का था। तो अगर हम इसको लेके चलते हैं तो जो है ना मेन आर्गुमेंट जो है वो यही आएगा कि ये तो ऑलरेडी इम्प्लीमेंट हो चुका है, आप कुछ न्यू क्यों नहीं कर रहे? तो इसको हम कैसे टैकल कर सकते हैं? I mean that's a kind of a valid question, but अगर आप शो करो कि why is this different, जैसे वॉइस वाले को लेते हैं, you can enable voice for अब डिफरेंट एप्लीकेशन के लिए डिफरेंट चीज़ें चाहिए होती हैं। सही है, आपने अगर अपने कंप्यूटर को कंट्रोल करना थ्रू वॉइस, दैट्स अ डिफरेंट एप्लीकेशन। अगर आपने किसी नाबीने की मदद करनी है, दे कैन सी एंड they can ask questions and see, right? So डेफिनेटली जो टीचर्स का कंसर्न है वो ये है कि आप चीटिंग तो नहीं करें, आई थिंक, राइट? और अगर आपने पब्लिशेबल वर्क करना है जैसे, तो डेफिनेटली आप वो नहीं कर सकते जो पहले हो चुका है काम। सही है, तो आपको ये भी पता नहीं चाहिए कि क्या क्या काम पहले नहीं हुआ। और अगर वो पहले हो चुका है तो हाउ कैन यू लाइक repurpose that work for a slightly different problem? सही। इंडस्ट्री के अंदर, आई मीन रिसर्च के अंदर ये मैटर करता है, क्योंकि रिसर्च के अंदर जो पहले काम हो चुका है, यू कैन नॉट डू दैट अगेन, राइट? यू प्रॉब्ली हैव टू डू अ डिफरेंट प्रॉब्लम, सॉल्व अ डिफरेंट प्रॉब्लम। अगर अगर आपने फर्स्ट करें इंडस्ट्री के लिए काम करना है, तो देयर इज लाइक everybody solving kind of same problems, right? तो मैं ये ऑडियो कंट्रोल कार्स का is a big industry, right? There are multiple billion-dollar companies who are doing this. घर में सीरी जो आप एप्पल की है, वो दैट्स अ multi-billion-dollar business. इसके अलावा अलेक्सा, सो काइंड ऑफ लाइक द सेम थिंग। सो बेसिकली आपको इसको टैकल इस तरीके से, मेरा ख्याल है, करना पड़ेगा कि आप उसकी एप्लीकेशन डिफरेंट ला के दिखाओ। आप उनसे पूछो कि कौन सा आप क्यों कह रहे हो कि ये प्रोजेक्ट पहले हो चुका है, फिर आप उन्हें बताओ कि ये इस काम के लिए हो सकता है, तो हम क्यों ना इम्प्लीमेंट करें? क्योंकि द प्रॉब्लम इज नाउ कि आप क्लाउड को कहो तो वो आपको 50-60% कोड बना के दे देगा। तो आई थिंक प्रोफेसर्स को भी ना ये चीज़ चेंज करनी पड़ेगी। हाँ, अगर आपके जानने वाले ने वो काम पहले किया और आप सिर्फ उसको पकड़ सबमिट कर रहे हो, तो दैट्स रॉन्ग। मगर द एंड गोल ऑफ एफआईपी इज टू गेट यू टू अ स्टेट जहां आप अपने फ्यूचर करियर को शुरू कर सको, आप देख सको कि आप क्या करना चाहते हो, और आप यू स्पेंड सम टाइम टू फिगर दैट आउट, राइट? सो आई थिंक it depends on professor to professor. You just have to figure out a way. अगर आप really passionate हो उस बारे में, then you go and learn and you figure out a separate problem that can be solved with the same technology, right? Any other question? सरफराज, आप आगे हो वापस? नबील, मैं सॉरी, मैं वो दरमियान में लूज हो गया था। ये आखिरी वाले प्रोडक्ट का आइडिया क्या था सर, जो आपने 8वां बताया? 8वां था कि फर्स्ट करो मैं पीएचडी वाले हूँ या फिर मैं प्रोफेसर हूँ और आई हैव टू रीड अ लॉट ऑफ पेपर्स, मगर मेरे पास टाइम नहीं है बस, क्योंकि मैं क्लासेस पढ़ा रहा हूँ और काम कर रहा हूँ। द ओनली टाइम आई हैव इज व्हेन आई एम ड्राइविंग, राइट? सो आइडिया ये था कि इट्स अ सर्विस वेयर यू कैन अपलोड योर बुक्स, really complicated like maths book for example, or papers, right? Say latest papers, latest and greatest papers, or it converts into like a podcast style of like a an audio that plays for you, और उसके अंदर आप उससे आपको वो समझा रहा है कि व्हाट इज द प्रॉब्लम दिस इज सॉल्विंग, क्यों ये किस चीज कर रहा है, इससे पहले बैकग्राउंड वर्क क्या था, इसकी इसकी खसूसियत क्या है, और अच्छा, देन ठीक यू है, कैन ठीक आल्सो है। ऐड
You can तो ये also जो add ये जो possibly आपने लिखा dancing. हुआ है, ये जो नोटबुक एलम काफी चीजें ये कर देता है नहीं? हाँ हाँ तो कर द थिंग देता इज कि व्हाट इज सो डिफरेंट इन दिस, यानी नोटबुक एलम से क्या चीज तुम डिफरेंट करना चाह रहे है. I mean, you are not doing anything different. This is like a final year project हो? जो हाँ। कि लोग खुद करेंगे तो उन्हें समझ आएगा कि this is not easy, this is still complicated. I mean, हम्म। एक तो चीज़ है ना कि जो चीज़ पहले नहीं बनी हुई, अब जितने भी मैंने आइडिया दिए हैं लिटरली कोई ना कोई स्टार्टअप इस पे फंडिंग लेके बैठा हुआ है और कर रहा है. सही है. सो हम्म। nowadays it's very difficult to find a new idea जो जिस पे कोई काम नहीं कर रहा. हम्म। सही. राइट। हम्म। सो आई थिंक द फाइनल ईयर प्रोजेक्ट का जो मेन गोल होना चाहिए वो ये है कि स्टूडेंट्स ने खुद काम किया उन चीज़ों पे और हम्म। दे ब्रॉट इट, दे बिल्ड द सिस्टम फ्रॉम 0 to 1 और उसे स्केलेबल बनाया है. सही है. दैट्स मोर इम्पोर्टेंट देन इफ द आइडिया वाज ऑलरेडी implemented something. You can always हम्म। find a reason to build that for a different class of problems. So notebook LM is, I think, I tried it long time ago. I never tried it again. But the idea is like कि किस तरह आप एक कॉम्प्लेक्स डॉक्यूमेंट को एक प्रेजेंटेबल ऑडियो प्रेजेंटेबल वर्क बना सकते हो ताकि आप उसको सुन सको गाड़ी में. मे बी हम्म। ऑडियो में भी एनएल नोटबुक ऑडियो कर रही है. So this is another interesting project जिसकी so इस प्रोजेक्ट का आइडिया ये है कि आप एक ऐसा प्लेटफॉर्म, एक ऐसा सिस्टम बनाओ जिसमें आप बताओ कि आप अपलोड कर दो अपने डॉक्यूमेंट्स, अपना टेक्स्ट प्रॉम्प्ट्स के कि मैंने अपनी टीम को वीआर या एआर, मोस्टली वीआर का मैं सोच रहा था कि ट्रेनिंग करानी है. फर्स्ट करो किसी मैकेनिक्स की कंपनी है जिन्होंने मैकेनिक को ट्रेनिंग कराया किस तरह गाड़ी का इंजन खोला जाए. And you give it all the 3D assets, or then it builds an app for you that you can load into your Oculus or whatever, and it takes you step by step through all the training. सही. तो आई थिंक दिस इज आई मीन अभी अगर इस काम को करना चाहिए तो करना हो तो आप यूजुअली यूनिटी को यूज करते हो या आप अनरियल को यूज करते हो. And I think that takes a lot of time. So this is something that a lot of people in the manufacturing and uh, in the industries, mechanical engineering की और जो भी है उसमें इसको यूज करना पसंद करेंगे. तो that's the idea. इसके तो आप लोगों को समझ आ गई होगी जल्दी. Project number 10. Project number 10, I was mostly thinking about US, but it's can be applied anywhere. पॉलिटिशियन जितना झूठ बोलते हैं मेरा नहीं ख्याल इतना शैतान भी झूठ बोलता होगा. तो खुसूसन यूएस में जो पॉलिटिशियंस हैं और मीडिया है, इट्स ऑल लाइक, आई मीन पाकिस्तान का डेफिनेटली, बट इट्स ऑल लाइक अ बंच ऑफ लाइज एंड ऑल दिस. सो ये आइडिया ये है कि आप बेसिकली एक डेटाबेस क्रिएट करो और जो कि पॉलिटिशियंस की जो तकरीरें हैं, उनके इंटरव्यूज हैं, वो इंटरव्यू को मदद करें फिगर आउट करने में कि इसने तो इस बिल पे साइन किया हुआ है, तो व्हाई ही इज लाइक आर्ग्यूइंग समथिंग अगेंस्ट इट, राइट. तो बेसिकली आप फिगर आउट करो और अपने लोगों को बताओ कि जो पॉलिटिशियन कह रहा है उसका एक्चुअल मतलब ये है. अगर इसका मतलब ये होता तो देन ही वुड नेवर हैव साइंड दिस बिल, राइट, इनटू लॉ. सो आई थिंक इसकी 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 ज़रूरत है. लॉट ऑफ लाइक कंपनीज लाइक Zeteo, वो जो मेहदी हसन का है, और डेफिनेटली लोगों को ज़रूरत है क्योंकि मोस्टली जो मैंने देखा है इधर यूएस में लोग सिर्फ एक न्यूज़ सुनते हैं और वोट दे देते हैं. और पाकिस्तान हम्म। में भी आपको तो है, तो इट्स आई मीन पाकिस्तान में आप पकड़े जाओगे तो वो अलग बात है. इधर ज़रा से आपको राइट्स हैं उसके लिहाज से. तो आई थिंक इट्स अ गुड आइडिया. एंड so this is another idea that I was interested in back long time ago. So आप लोगों ने कभी, अगर आपने सोचा हो कभी एल्गो ट्रेडिंग का या फिर ऑप्शन ट्रेडिंग का, इट्स जस्ट अ वे ऑफ लाइक
figuring out signals and figuring out like अगर मैं ये करूँ तो अगर मैं इस तरह इन्वेस्टिंग करूँ तो मैं किस तरह अपना पैसा बढ़ा सकता हूँ। तो इस प्रोजेक्ट का जो आइडिया ना कि आप बेसिकली एक सिमुलेशन सैंडबॉक्स बनाएं जिसके अंदर आप अपने एल्गोरिथम्स ट्रेन करा सकें और आप अपनी स्ट्रेटजीज को बैक टेस्ट कर सकें using LLM or sorry reinforcement learning, right? So इस प्रोजेक्ट का जो बेसिक गोल है वो ये है कि getting some people you understand that this is a market, this is a job that they can do and while earn money और इसके अंदर जो कि आई डोंट थिंक पाकिस्तान में ये मार्केट एग्जिस्ट करती है अभी, शायद करती हो, आई डोंट नो। लेकिन यूएस के अंदर ये बहुत बड़ी मार्केट है और इसकी ये बेसिकली टेक मार्केट से ज़रा स्लाइटली डिफरेंट मार्केट है जिसके अंदर आपको अगेन सैलरी बहुत अच्छी मिलती है। इसके अंदर जो यूजुअली जो इंजीनियर्स जाते हैं ना, दे आर really good at maths, probability, random algorithms, and programming and systems, right? So you have to build systems that are really like fast and figure out the signals and trade. अगर आप high frequency trade कर रहे हो, अगर आप options की बात करो, that's slightly different. So अगर क्रिप्टो का भी इसमें हो सकता है ये, लेकिन मैं जो रिकमेंड कर रहा हूँ ये नहीं है कि एक्चुअल ट्रेडिंग कर रहा है। इट्स अ प्लेटफॉर्म that you can build to test your algorithms. टाइम है सरफराज के आगे करें? यस है। कोई प्रोजेक्ट आप लोगों को अच्छा भी लग रहा है कि नहीं? ये तो बच्चे बताएंगे। अभी मेरे पास एक एआई कोच का है, ये जेनरेटिव एवी ऑटोनोमस व्हीकल सिनारियो सिंथेसाइजर है, 3D गॉसियन स्प्लैटिंग एनवायरनमेंट क्रिएटर है, एडवर्सरियल ट्रैफिक सिमुलेशन है, देन रोबोटिक डिजिटल ट्विन है। एआई कोच का आइडिया ये है कि आई मीन इसको जो जनरल आइडिया है ना वो ये है कि आप, और ये बहुत ज़्यादा लोग कर भी रहे होंगे, गोल्फ का तो आई थिंक देयर आर ऑलरेडी मल्टी बिलियन डॉलर बिजनेसेस जो कि गोल्फ की ये चीज़ चला रहे हैं जहाँ लेकिन आइडिया ये था कि आप कोई भी गेम खेल रहे हो और खुसूसन जिसमें कम लोग इन्वॉल्व हैं, क्रिकेट माइट बी स्लाइटली डिफिकल्ट बिकॉज द कैमरा आपको चाहिए, मगर एज अगर आप फर्स्ट कर योगा ट्रेनिंग कर रहे हो, आगे आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहे हो, या आप बेसिकली टेबल टेनिस खेल रहे हो, सही है, देन आप एक ऐप बनाओ जो कि आपकी यूज़र की मूवमेंट्स को देखे और फिगर आउट करे कि वेयर इज़ द प्रॉब्लम, राइट? आप किस तरह अपनी मूवमेंट को सही कर सकते हो। अगर आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की बात कर रहे हो तो व्हाट आर यू डूइंग रॉन्ग, राइट? आप वर्जिश सही कर रहे हो कि नहीं कर रहे। और अगर आप इसी तरह बेसिकली ये ऐसी ऐप है जो कि अगर आप इफ़ यू फाइंड a good use case for it and make it cheap and make it run on like the phone instead of like VLMs, like really complicated and expensive, then you can sell this app as a subscription based, which is good enough money अगर आप $1 $2 की भी monthly बेच रहे हो। तो I think this is a very good idea and is this something that I would be interested in अगर आप स्क्वाश के लिए बनाओ। So let's move on to the next one. अच्छा, ये जो आइडिया है ना, ये क्योंकि आजकल मैं ऑटोनोमस व्हीकल्स की इंडस्ट्री में हूँ, तो ये आइडिया मुझे अच्छा इस वजह से लगा कि आइडिया ये है कि आप एक वर्ल्ड मॉडल ट्रेन करो, हैव टू बी लाइक स्मॉल और well, it's had to be small enough that turns real world 2D dash cams to interactive multi-sensor 3D driving scenarios, right? So imagine आपके पास एक कैमरा आपने लगाया हुआ है आपकी डैशबोर्ड पे और यू आर गोइंग थ्रू अ स्ट्रीट, इट्स कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन। अच्छा, यहाँ एक बिल्डिंग थी, यहाँ एक बिल्डिंग थी, रफली बहुत बहुत यानी कि माइंड बहुत थोड़ी सी इंफॉर्मेशन it's capturing, not the whole thing, and then you are regenerating the whole scene that people can edit and then use it for simulations and training for their autonomous vehicles. So इधर काफ़ी इस तरह के चीज़ें हैं जो कि वेमो यूज़ करता है
हमारी कंपनी भी यूज़ करती है। और there are softwares, there are like simulation softwares like ROS, robotic operating system 2, और Carla जो कि सेल्फ ड्राइविंग का है, जो कि आप यूज करके ना इसको इसको बेसिकली अप्लाई कर सकते हैं उस पे एक्चुअल। आई थिंक दिस इज ये ऐसा है जिसके अंदर आप वर्ल्ड मॉडल्स को भी जरा सा टच करोगे, डिफ्यूजन मॉडल्स और ट्रांसफॉर्मर्स को। तो आई थिंक दिस इज अ गुड प्रोजेक्ट फॉर सो आई डोंट थिंक पाकिस्तान के अंदर कभी ऑटोनोमस व्हीकल्स आएगी कि नहीं आएगी, मगर यूएस के अंदर आ चुकी है और चाइना के अंदर तो काफ़ी देर से है। और आई थिंक इंडस्ट्री इज एट द पॉइंट वेयर इवन पाकिस्तान के अंदर भी आ सकती है। अगर आप सोचो तो मैं सिर्फ गाड़ी की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ कि ड्रोन्स के लिए भी यूज़ हो सकती है, क्योंकि इट्स मच ईजियर ड्रोन्स के केस में कि इसने किस तरह ड्राइव करना है। तो और इसको लेके आप इमेजिन करो कि आप इसको फार्मिंग के लिए यूज़ कर रहे हो। एक ड्रोन जाता है, तस्वीर खींचता है, फिगर आउट करता है कि आपको किधर किधर पानी देना चाहिए, या आपको इसको किसी और चीज़ के लिए यूज़ करते हो, सिर्फ बिल्डिंग का स्कैन लेने के लिए, स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। तो आई मीन यू कैन टेक दिस एज एन आइडिया एंड फिगर आउट कि इसको किस प्रॉब्लम के लिए सॉल्व करना है। अब ये इट्स अ वेरी सिमिलर आइडिया, अगर इसमें अगर स्पेसिफिक एक टर्म है 3D गॉसियन स्प्लैटिंग। सो आपको इस प्रोजेक्ट में आप बेसिकली 3D स्प्लैटिंग, गॉसियन स्प्लैटिंग का काम सीखोगे। तो again it's like reconstruct the whole thing, but and you can render it in real time because of 3D Gaussian splatting, and that I think is a, अगर आपने कंप्यूटर ग्राफिक्स में PhD और उसमें करने जाना है, then at this point you should know what this is. Idea is very similar to Project 13, so it's not too different, but it's using slightly different technology. अच्छा, जो ये आइडिया ना ट्रैफिक एडवर्सरियल ट्रैफिक सिमुलेटर, ये है कि फर्स्ट करें आप कार्ला सॉफ्टवेयर यूज कर यू में कोई आप एक ड्राइविंग सिनारियो आप एल्गोरिथम लिखते हैं सेल्फ ड्राइविंग का, एंड इट्स अ सिमुलेशन थिंग। अब आपने एक ऐसा मल्टी एजेंट सिस्टम बनाना है जो कि ट्राई टू ब्रेक द सिस्टम, राइट? कि आपके एल्गोरिथम जो है, जो भी टॉप ऑफ द लाइन एल्गोरिथम है इस वक्त, it can somehow figure out a way to put passengers or pedestrians or cars in a way that they can always have a collision, right? So इसकी वैल्यू ये है कि अगर आप इस तरह का सिस्टम बना लेते हो, then it will help those companies. You can sell it to those companies that want this to train their models, to kind of like refine their models even further. So I think this is a good idea if you are interested in autonomous vehicles. जो लास्ट थिंग है ना वो है अगेन इट्स अबाउट रोबोटिक्स, इट्स अबाउट किस तरह आप एक क्लाउड प्लेटफॉर्म बनाओ that creates a real time physical accurate digital twins of a fleet or warehouse for delivery robots. Okay, so operation can test layout changes and navigation algorithms. So ये जरा सा इस काम को मैंने जरा सा थोड़ा बहुत किया था मेटा के अंदर। मेटा के अंदर एक बहुत बड़ा इशू था, आई मीन डेटा सेंटर्स के अंदर एक बहुत बड़ा इशू ये है कि आफ्टर सम टाइम्स योर हार्ड डिस्क जस्ट गो बैड, राइट? सो अगर तो आप फिगर आउट करते हो कि क्या किस तरीके से क्या इशू है, उधर उधर टेम्परेचर कई दफ़ा बढ़ जाता है तो दैट्स जस्ट ब्लो थिंग्स अप, और कई दफ़ा वैसे केबल्स जवाब दे जाती हैं। एंड सो द आइडिया इज़ कि अगर आपके पास कोई बड़ी इंडस्ट्री है जिसने ऑटोमेट करना है डिलीवरी का काम या इंस्पेक्शन का काम, तो हाउ कैन यू take the images of their surrounding, their setting, and create a digital twin of what kind of robots you can put in to fix their problem, or to like Amazon is तरह की चीजें use करता है, and I know Meta was interested in doing that. So it's more learning about robots, which is a big industry right now. Again, CAD and physical models that you need to learn, or simulations.
So I think this is a good idea. There are libraries out there जो कि you can do simulation in. So you don't have to work on actual robots, but you can get into the field of robotics using this. The other जो चीज़ है ना कि मैं robotics का इस वजह से भी कह रहा हूँ कि robotics की फील्ड में अब नेक्स्ट जो अभी आपने LLM पे देखा ना कि कितना जोर डल रहा है, जो जो नेक्स्ट बहुत ज़्यादा फंडिंग आ रही है ना वो रोबोटिक्स में आ रही है, एंड इट्स मोस्टली बिकॉज ऑफ वारफेयर। जो ईरान के साथ जंग हो रही है, ड्रोन्स के जो ने टोटली वारफेयर को चेंज कर दिया है, मगर इट्स ऑल्सो अबाउट लेबर शॉर्टेजेस इन वेस्टर्न कंट्रीज। तो इट्स अ बिग फील्ड जिसमें इंडस्ट्री से फंडिंग आती है एकेडेमिया में, फिर एकेडेमिया में जो प्रोफेसर इस पे काम कर रहे हैं दे स्टार्ट वर्किंग ऑन दीज थिंग्स, सो दैट्स हाउ the cycle goes. So I will skip this thing. This is just like I think we discussed this. So I'm going to conclude in like 3 slides, but सरफराज इस चीज पे हम बात कर रहे थे कि the hard truth is that CS की जो new unemployment है ना, it doubled in last year, right? सो जो एंट्री लेवल सॉफ्टवेयर इंजीनियर, मैं यूएस की बात करूं, पाकिस्तान की नहीं, और पाकिस्तान में डेफिनेटली जो हम दोस्तों से बात करते हैं दे आर सेइंग सिमिलर स्टफ। और जो एंट्री लेवल पोजीशन है दे आर हिट द हार्डेस्ट। आप ग्रेजुएट कर रहे हो तो पहले अगर 100 नौकरियां होती थी तो अब 70 हैं, 60 हैं, तो यू आर कम्पीटिंग अगेंस्ट अ लॉट ऑफ अदर पीपल, राइट? सो अब मैं यूएस के अंदर मैं लोगों को जानता हूँ जिन्हें 2 साल से नौकरी नहीं मिली, और मोस्टली वो थे जो कि जूनियर से मिड लेवल करियर्स में हैं, because of literally AI, or not just AI, because of the CEOs at the top, or the oligarchs at the top think that they can fire everybody and they can still get all the money or make all the money they're making, which is not true. But definitely LLM ने एक चोट लगाई है जिससे पता चलता है कि यू कैन लिव विदाउट अ लॉट ऑफ इंजीनियरिंग पावर जो हम अपने डे टू डे वर्क में देखते हैं। सो द क्वेश्चन इज के अब आप क्या करो कि आपको नौकरी मिले, आप जो लाइन में हो उसमें आप ahead of everybody else, or you go and do your own startup, which I think is much more preferable at this point, or या फिर अपना कोई business start करो, सही है? तो I think so. This is an interesting, or I think it's temporary, and I think the remedy for this is that the newcomers should be very well versed in LLM, right? But using all different kind of models and how to speed up implementation. So अभी सरफराज जब तुम लाइन पे नहीं थे तो कुछ बच्चों से बात हो रही थी, तो क्वेश्चन ये था कि टीचर कहते हैं कि ये चीज़ जो आप करना चाह रही हो तो पहले हो चुकी है, और या फिर मेरा ख्याल है ये भी हमने डिस्कस किया कि LLM की यूजेज बैन की हुई है। तो ये वो चीज़ है जहाँ LLM आपको बेसिकली ये टूल्स अपने स्टूडेंट्स को देने चाहिए, क्योंकि ये उन्हें इंडस्ट्री में वो ये यूज करेंगे ही करेंगे, सही है? It's going to be helpful for them, especially for people who are going to industry or startups, कि उन्हें ये टूल पहले से आने चाहिए, सही है? सही बात है। और इंडस्ट्री में जाना तो you have to do a lot of like lead code, neat code, like system design. So आपको इंटरव्यू बहुत, आपको algorithms, आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग, आपको सिस्टम डिजाइन, ये चीजें आपको बहुत अच्छी करनी पड़ेंगी। और नई चीजें भी है कि आपको AI टूल फ्लुएंसी चाहिए हर चीज में। और एक जो चीज थी कि अगर आप स्टार्टअप कर रहे हो ना, तो रिमेंबर दिस नेम Y Combinator, राइट? So Y Combinator Y Combinator is like a investment kind of a क्या कहते हैं इसको एग्जैक्टली नाम नहीं मुझे, हेज फंड कह लो, मगर इट्स लाइक एन इन्वेस्टमेंट। हर साल में 4 दफा ना ये थ्रू आउट द वर्ल्ड ये फंड करता है स्टार्टअप्स को।
तो अगर आपका कोई आइडिया ऐसा है जो कि आपके पास कस्टमर्स भी हैं, आइडिया भी बहुत अच्छा है, एंड यू थिंक यू कैन अप्लाई फॉर वाई कॉम्बिनेटर, जस्ट गो अहेड एंड डू इट। मे बी यू कैन, आई मीन सब पाकिस्तान से भी कुछ लोग कई दफ़ा सेलेक्ट हुए हैं। मोस्टली ये यूएस हाँ यूरोप की देखते हैं, मगर पाकिस्तान से भी लोग सेलेक्ट हुए हैं, दे फंड यू। फिर आप इधर यूएस में आते हो, 6 4 5 महीने सर, काम करते हो। डू दे सी के आपके पास पोटेंशियल ऑडियंस है या ऑडियंस होने क्या? जो वाई कॉम्बिनेटर है ना, ये है कि आपके पास आइडिया भी है ना, तो दे विल लुक इनटू इट। सही है। अच्छा, आपको जबरदस्त। आप इसको ऑनलाइन जाके देखना, वाई कॉम्बिनेटर पे आप पिच कर सकते हो अपना आइडिया। यू हैव टू मेक अ वीडियो ऑफ ऑल द प्ले ऑफ द टीम, you have to present your idea, हम्म and and hope that you get selected, but क्योंकि दुनिया से करते हैं लोग, तो it's very competitive। हम्म हमने 3 दफा किए, 3 दफा रिजेक्ट हुए। लेकिन अच्छा और जो दूसरी चीज है ना, कि ये प्रेफर करते हैं लोग, यंगर जनरेशन, लाइक जो हम्म अभी भी ग्रेजुएट हुए हैं, and हम्म definitely they prefer people from the US। वो that bias is there। ठीक है, ठीक है। मगर अगर आपका आइडिया अच्छा है और आपके पास हम्म कस्टमर है, देन हम्म और आप विलिंग हो इन्वेस्टमेंट उठाने में, जो कि नॉट ऑलवेज अ गुड ऑप्शन, तो ये एक ऑप्शन है जो कि आई हम्म डोंट थिंक अ लॉट ऑफ पीपल नो अबाउट। बाकी बाकी देयर इज ऑलवेज लाइक, अगर आप नौकरी ढूंढ रहे हो एंड यू नो समबडी दैट वर्क्स एट दैट कंपनी, रीच आउट एंड आस्क फॉर रिफरल, okay, that can help you at least move the needle a little bit। अच्छा, अब हम आ जाते क्वेश्चन आंसरिंग पे, और आई मीन द फ्लोर इज ओपन। आप अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सरफराज, अगर आपके ज़हन में कोई क्वेश्चन है, दिस इज द लास्ट स्लाइड, आई हैव नो नथिंग एल्स। वेल, दिस इज द लास्ट स्लाइड। प्लीज, और आप कोई सवाल ये करना चाहते हैं तो प्लीज, यू आर मोस्ट वेलकम। ये ये स्लाइड्स मैं शेयर कर दूंगा सरफराज आपके साथ। तो इसके एंड पे ना मैंने रीडिंग के कुछ दिए हैं, कि ये कुछ बुक्स हैं, जैसे ये बुक है, आई वुड हाईली रिकमेंड एवरीबडी कि कभी ना कभी थ्रू आउट द नेक्स्ट ईयर आप इस बुक को पढ़ें। सही है। ऑनलाइन पे हम्म आपको मिल जाएगी। एंड ऑल्सो दिस वन। बाकी सारी इट्स ओके, बट ये दो जो पहली दो बुक्स है ना, द आर्ट ऑफ द स्टार्ट 2.0 और लीन स्टार्टअप, ये पढ़ें आप। हम्म इसके अलावा अगर आपने नौकरी करनी है तो ये 3 किताबें हैं जो कि, और एआई में करनी है तो ये 3 किताबें हैं। अब इसकी एलएलएम की भी कोई आएगी, चिप हुयन की, मगर ये 3 किताबें जो आप एटलीस्ट आपके पास हों, और आप उसे कभी ना कभी खोल कर पढ़ें। देन रेफरेंसेस हैं जो कि आई डोंट थिंक आप यू नीड इट, बट सो एनी क्वेश्चंस? एनी क्वेश्चन प्लीज? हाँ जी, जी अफान पूछना चाहें आप? जी अफान पूछें। आप म्यूटेड हो। अफान, आप कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ लें। ड्रॉप करके ज्वाइन कर रहा है। एक्सक्यूज आई मी डोंट नो सर। व्हाट हैपेंड। जी जी। सर मेरा ये क्वेश्चन था कि जैसा आपने कहा है कि जॉब मार्केट में जॉब्स काफ़ी कम है, तो स्टार्टअप हम करते हैं एज एन अंडर हम्म ग्रेजुएट, तो ठीक है। स्टार्टअप में हम कस्टमर्स कहाँ से ढूंढें, कैसे ढूंढें? वेरी गुड क्वेश्चन। दैट्स जी अ नबील। गुड क्वेश्चन। जैसे मैंने कहा है ना, कि जो प्रोजेक्ट आप चूज कर रहे हैं, सही है, जैसे कैट का मैंने फर्स्ट एग्जांपल किया, तो आप फिगर आउट करें कि पाकिस्तान में वो काम किधर हो रहा है। और यूजुअली हम हमें पता नहीं होता, लेकिन काफ़ी ज़्यादा इस तरह के एग्जैक्टली मैन्युफैक्चरिंग के काम हो रहे होते हैं। सही है। अब मैं यूईटी से पढ़ा हूँ, लेकिन जब तक मैं यूईटी में था, आई नेवर न्यू कि यूईटी के सिर्फ आगे जाके बहुत बड़ी इंडस्ट्री है जो कि एग्जैक्टली ये काम, ये मशीनिंग का और ये कैड का काम करती है। हम्म तो यू हैव टू रीच आउट टू पीपल हु नो, राइट। अगर आपकी फील्ड के अंदर, जैसे जैसे यूटी के, हमें ये आईटी का नहीं मुझे पता, लेकिन यूटी के अंदर ये था कि आपके पास 20 डिफरेंट फील्ड की इंजीनियरिंग है, और हॉस्टल में या फिर चलते फिरते आप किसी को
जानते हो जो कि उस फील्ड में है तो आप उससे पूछ सकते हो, या किसी के आपके आपके कोई फैमिली मेंबर हैं जो कोई बिजनेस करते हैं, तो दैट्स अ गुड कि जो एक्चुअली आपको प्रोडक्ट यूज करने के लिए तैयार होंगे भी। तो कोई ना कोई वास्ता निकाल के आप किसी बिजनेस जो कि अच्छा बिजनेस चलता हो, तो उससे आप जाके पूछ सकते हो, मिल सकते हो, फिगर आउट करोगे किस प्रॉब्लम पे आपको काम करना चाहिए। यूएस के अंदर यूएस के अंदर का मैं अगर बताऊं तो इधर यूजुअली आप ना सेल्स के बंदों को हायर करते हो, और डिपेंड करता है उसको हायर करते हो उनको परसेंटेजेस पे कि जब प्रोजेक्ट आएगा तब हम आपको पे करेंगे। एंड दे यूजुअली गो अराउंड ऑल डिफरेंट बिजनेसेस, uh, or they find out businesses for you, or then you try to see if something that you're interested in, or something you have built, and they can find customers for it. So that's one way जो मैं यूएस में मैं जानता हूँ, मगर पाकिस्तान का of course you need somebody कि कोई connection हो। जी, एनी अदर क्वेश्चन? एनी अदर क्वेश्चन? औरंगजेब, आप कुछ पूछना चाहते हैं? नो सर, क्लियर हूँ, आई एम क्लियर। चलो शाबाश, ठीक है। हमजा, आप कुछ पूछना चाहते हैं? चलो ठीक है। बीनश, आप कुछ कहना चाहें? मुस्फरा, उमर? नो सर। चलें, ठीक है। थैंक यू सो मच। थैंक यू नबील फॉर दिस वंडरफुल टॉक। मैं ये इसकी रिकॉर्डिंग जो है वो भी शेयर कर दूंगा। इफ देयर इज एनीवन हु इज इंटरेस्टेड इन दीज प्रोजेक्ट्स, और इसी तरह के प्रोजेक्ट अगर कोई आप करना चाहें और उसमें बात करना चाहें, तो आप मुझसे बात कर सकते हैं, और फिर हम मिलके एक दफ़ा डिस्कस करके रिफाइन करके फिर नबील से भी टाइम ले सकते हैं, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो। ठीक है जी। चलें जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। आई होप you enjoyed this session, and I hope you will do wonderful project in this semester. ठीक है जी। चलें जी। अच्छा, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह ओके जी, हाफिज़, अल्लाह अल्लाह हाफिज़, हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।